Hello students, today I'm going to start our poem The Lake Isle of Innisfree, which is our fourth poem. And as I told you yesterday in previous lecture that I had skipped this poem, and today I'm going to complete it. The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler Yeats. The poet is William Butler Yeats. And at first I want to tell you about the poet of this poem, about the poet William Butler Yeats, who was born on 13th June 1865. He was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature, a pillar of both the Irish and British literary establishments. He helped to found the Abbey Theatre, and in his later years served as an Irish senator for two terms. Yeats was driving for a force behind the Irish literary revival along with Lady Gregory, Edward Martyn, and others. So this is also very famous poem of William Butler Yeats, and this poem is about the charm of a rural area. It's all about how the speaker's dreams for the future don't quite reconcile with his present situation and about the clash between the dreams and reality. The Lake Isle of Innisfree is based on three ideas. They are home, isolation, man, and the natural world. Three ideas are home, isolation, man, and the natural world. While the speaker of the Lake Isle of Innisfree appears to live in a city, he is unable to reconcile with his present situation. He seems that in his heart's core, he craves for a peaceful, natural, rustic setting. Isolation can be very lonely, but not in the Lake Isle of Innisfree. The speaker seems to really uh, crave for some solitude from his life in the congested and noisy city. He remembers about his childhood days spent in the Lake Island, and there is always conflict between man and the natural world. But however, the poet seems to love the natural greenery, the birds, insects, and the lapping of the waves on the island shore. This poem is a lyric, which is the genre of poetry in which the writer is expressing emotions, usually briefly in the stanzas. And now I'm going to tell you about the summary of this poem. In this poem, the poet wants to escape from the urban life for a more rustic settlement, as he remembers his childhood days spent in the maternal home. He expresses his desire to build and stay a small cottage, plant 9 bean rows in his garden, and have a beehive for the bees in the Isle of Innisfree. He desires to be independent and wants to live alone in peace with nature. Here, the poet welcomes the chirping of the cricket after the mist is unveiled in the morning by the rising sun. The glade where he builds his cottage is constantly buzzing with the bees, moving to and from its hive. It is a sight to behold, to see the linnets fly in multitudes in the evening sky. Now the poet says that the clear night is uh, enlivened by the twinkling of millions of stars. The island is ever alive because of the lapping of the waves on the island shore all day and night. And the poet equates peace to nature as against the sound of traffic in the city where he is presently dwelling, living.
he recalls each part of the day with fond memories, and he says that he can hear every sound of his past echo in the core of his heart. It means कि पोइट जो है वो अभी रह तो जो है सिटी लाइफ जो है जी रहा है, लेकिन उसको जो है रूरल एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ड्रीम करता है। यहाँ पर ड्रीमी लाइफ और रियलिटी लाइफ में एक डिफरेंस दिखाया गया है। वो सोचता है कि मैं जो है कभी एकांत में जो है एक छोटे से आइलैंड पे अपना एक कॉटेज बना करके रहूँ, वहाँ पर सिर्फ मैं नेचर को जो है इन्जॉय करूँ, बजिंग साउंड ऑफ बीज, लैपिंग ऑफ द वाटर ऑन द सी शोर की जो है जो बीज हैं उनकी बजिंग साउंड को एंजॉय करूं, और पानी का जो पानी का किनारों से आकर के टकराना, वो जो आवाज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाती हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है। वो जो है अपनी इस सिटी लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुका है, उसको जो है इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी कंजस्टेड एरिया, very rushed, and he can't live in this area anymore. So he wanted to leave this place and wanted to go in solitude and live there, but it is not possible for him to leave his place, because to live life it is very necessary to do work. So I am going to read this poem thoroughly. Listen carefully. This well-known poem explores the poet's longing for the peace. ये जो well-known poem है ये किस चीज़ के लिए है? ये एक्सप्लोर करती है कि पोइट की क्या इच्छा है, शांति प्राप्त करने की जो इच्छा है इसके लिए, एंड द ट्रांक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। और ये एक इमेजिनरी आइलैंड है इनिसफ्री, उसकी इमेजिनेशन में ही उसने जो है इसको बनाया है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, बट विलियम बटलर येट्स हैज़ इमेजिन दिस आइलैंड। उसने जो है सिर्फ इमेजिन किया इस आइलैंड को, इनिसफ्री को, कि वो कितना ज़्यादा शांत आइलैंड है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, और एक ऐसी जगह जहाँ पर उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। दिस पोएम इज़ लिरिक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ अ जेनर ऑफ पोइट्री इन विच द राइटर इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यूजुअली ब्रीफली इन द स्टेंजाज or recognized forms. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. As I told you, he is just imagining it. He is not going anywhere. इमेजिनेशन है सिर्फ पोइट का। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आई विल अराइज, स्टैंड अप। अराइज मीन्स आई विल स्टैंड अप, एंड इनिसफ्री, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ एन आइलैंड इन अ लेक विच इज़ इमेजिनरी फॉर द पोइट, एंड कैबिन, एंड स्मॉल कैबिन। कैबिन मीन्स इट मीन्स अ स्मॉल वुडन शेल्टर। वहाँ पर जो है एक छोटी सी अपने रहने की जगह बनाएगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, क्ले मीन्स मड एंड वेटल्स मीन्स मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ रॉड्स interlaced with twigs or branches used for building walls or fences. And bean rows means rows of bean plants, क्यारियाँ बीन्स की। And will I have there a hive for the honey bee, as you all know, छत्ता जो है हनी बीज के लिए वहाँ पर जो है होगा। And live alone in the bee loud glade. Glade means open space in the forest. It means open space in the forest. Or bee loud means place having the loud sound of bees buzzing. जहाँ पर जो है बीज की जो बजने की उनकी आवाज़ें आ रही होंगी उस एरिया को जो है पसंद करता है। मैं आपको इसके बारे में थॉरोली बताती हूँ।
The poem starts with the poet saying that he will walk up and go to the island of Innisfree. He compares his life in the city to sleep. He compares his life in this poem, the city to sleep, and when he wakes up and becomes conscious, he will be transported away from the sedentary city life to life of activity in rural area. कि अभी तो जो है वो नींद में है, तो वो कहाँ पर है, शहर में है, लेकिन जैसे ही वो जागेगा, जैसे ही वो खड़ा होगा, तो वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एकदम से वो जो है रूरल एरिया में चला जाएगा, इस नॉन एक्टिव एरिया से जो है एक्टिव एरिया में चला जाएगा, जहाँ पे उसका मन बहुत ज़्यादा जाने के लिए तरस रहा है, जहाँ पे उसको जाना बहुत ज़्यादा पसंद है. In particular, the poet mentions two activities that he would like to engage in: physical labor, building a cabin. यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ वो करना चाहता है इस फर्स्ट स्टिंजा में. एक तो वो जो है एक कैबिन बनाना चाहता है, और दूसरा क्या है, he wants to plant 9 rows of beans. वो जो है वहाँ पर क्या उगाना चाहता है, जब वो रूरल एरिया में चला जाएगा, इस आइलैंड पर चला जाएगा, लेक आइलैंड पर, वहाँ पर जो है वो क्या देखेगा, एक तो अपना वहाँ पर छोटा सा कैबिन बनाएगा, ठीक है. उसके बाद वो क्या करेगा, बीन रोज़, छोटी छोटी जो है 9 क्यारियाँ बनाएगा, जिनमें जो है वो क्या उगाएगा, प्लांट करेगा बीन्स. एंड आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी. और वहाँ पर जो है विल आई हैव, क्या मुझे वहाँ पर जो है एक छत्ता मिलेगा हनी बीज का. एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और फिर वो क्या कहता है कि वहाँ पर मैं सोलिट्यूड में रहूँगा, बिल्कुल अकेला रहूँगा, एकांत में रहूँगा, विद द बीज बजिंग साउंड. वहाँ पर जो है बीज की बजिंग साउंड मुझे सुनाई देगी, और ओपन एरिया है जहाँ पर मैं बड़ी खुशी से जो है वहाँ पर रहूँगा. सो हियर द लाइफ ऑफ द सिटी एंड रूरल एरिया इज़ कंपेयर्ड बाय द पोइट, दैट ही सेज दैट city life is very boring and it is non-active life. He want to be transported to the rural area where the life is very active, where he wanted to be stay every time. He want to spend his lifetime there. Now to the next point. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sing, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. Now the poet says that, and I shall have some peace there. और वहाँ पर जो है मैं बड़ी शांति के साथ रहूँगा. The poet says that his life on the island of Innisfree will be very peaceful. For peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. और यहाँ पर जो है poet क्या यूज़ करता है, इमेजरी यूज़ करता है. इमेजरी मीन्स इट इज़ ऑल्सो पोइटिक डिवाइस. यहाँ पर जो है व्हील्स का मतलब क्या है, व्हील्स मीन्स मिस्टी एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग, मिस्टी एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग. वो कहता है कि जो सुबह है वो एक ऐसी औरत की तरह है जिसने अपने ऊपर घूंघट डाला हुआ है. व्हील्स मीन्स दुपट्टा. औरतें क्या ओढ़ती हैं, दुपट्टा. और यहाँ दुपट्टे से मतलब किससे है, मिस्टी एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग. सुबह का जो धुंध भरा जो एटमॉस्फेयर है उससे जो है व्हील्स बोला गया है. और ये उस औरत की तरह जो सुबह है, जब सनराइज़ होता है तब जो है पूरा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, टोटली मिस्टी, पूरा जो है धुंध से भरा हुआ है. लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, ये जो सुबह है ये अपना दुपट्टा जो है, ये मिस्टी रूपी जो दुपट्टा है, धुंध रूपी जो दुपट्टा है, उसको उतार देती है और
सूरज की रोशनी जो है हर जगह फैल जाती है। तो यहाँ पर जो है सूरज के निकलने से पहले वाले एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को क्या बोला गया है? विल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जो है जो मिस्टी फोगी दुपट्टा जो ओढ़े रहती है उसको जैसे ही सनराइज होता है उसको उतार देती है। एंड टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जब वो सुबह उठता है तो कौन उसको जो है गाना सुनाता है? क्रिकेट जो है अपना गाना सुनाता है। एंड ही लाइक्स मिडनाइट ऑल्सो, हेयर द पोइट लाइक्स मिडनाइट ऑल्सो ऑल अ ग्लीमर एंड नोन, क्योंकि मिडनाइट में जो है उसको ऊपर आसमान में क्या चमकता हुआ दिखाई देता है? सितारे जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं, शाइनिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। बिकॉज इन सिटीज़ वी कांट सी शाइनिंग स्टार्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से जो है हम चमकते हुए सितारों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है? जब मैं रूरल एरिया में, जब मैं आइलैंड पर जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा? आधी रात का जो दृश्य होगा वो भी बहुत ज़्यादा सुहावना होगा जब उसको शाइनिंग स्टार्स उसमें दिखाई देंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, अब वो किसके बारे में बात करता है? नून के बारे में, कि आई ऑल्सो लाइक नून ऑल्सो एज वेल एज इवनिंग। पर्पल ग्लो मीन्स द लाइट ऑफ आफ्टरनून, इट मीन्स द लाइट ऑफ आफ्टरनून। मुझे जो दोपहर की लाइट है बहुत ज़्यादा चमकदार, वो भी बहुत पसंद आएगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और शाम को जो है मुझे लिनेट बर्ड के मेलोडियस सॉन्ग्स सुनाई देंगे। लिनेट इज़ अ स्मॉल बर्ड ऑफ ब्राउन एंड ग्रे कलर, जो कि यूरोपियन बर्ड है। तो वहाँ पे क्या कहता है कि जब मेरी, उसने तीनों टाइम को जो है यहाँ पर एक्सप्रेस किया है इस स्टेंजा में, कि सुबह उसको बहुत ज़्यादा शांति देने वाला जो है एटमॉस्फेयर होगा, और उसको जो है जैसे ही सनराइज़ होगा तो जो मिस्टी एनवायरनमेंट है वो पूरा जो है साफ़ हो जाएगा, और सारा जो एरिया है वो धूप की वजह से चमकना शुरू हो जाएगा। और जब वो सुबह उठेगा तो उसको क्रिकेट का सॉन्ग सुनने को मिलेगा। उसको रात, मिडनाइट भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। ही लाइक्स मिडनाइट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। एंड नाउ ही टॉक्स अबाउट द पर्पल नून ग्लो, पर्पल ग्लो ऑफ नून, अबाउट द very shining noon time also, and he describes his evenings also, that he will like evenings because of the he will hear the song of linnet bird there. So now we go to our third stanza. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. Now what the poet says here, what is the meaning of lapping? In this stanza the poet makes a resolution, एक संकल्प लेता है, that he will go to Innisfree just now. He will go to Innisfree just now. And because Innisfree is never out of his mind, he just wanted to go Innisfree. And throughout the day and the night he can only hear one sound in his mind. Throughout the day and the night he can only hear one sound in his mind, that is of the water reaching the shore, that is of the water reaching the shore of the island of Innisfree at a calm place and creating a soft lapping sound. Lapping means टकराने की जो आवाज़ है, वो वहाँ पर कौन सी आवाज़ जो है उसको दिनों रात सुनाई देगी? जो लेक है उसके किनारों से जब पानी आकर के टकराता है तो उस पानी से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी टकराने की जो है लैपिंग साउंड मीन्स द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर after striking to the shore, after striking to the shore. So he wants to hear that sound throughout the day and the night. वो उस आवाज़ को जो है दिन और रात सुनना चाहता है. Shore means किनारा. While I stand on the roadway, now he wants to say that he hears this sound deep within his own heart,
as he goes about his life in the urban setting of roadways and pavements. जब मैं जो है रोडवे पे जा रहा हूँगा, खड़ा होऊंगा, रास्ते में खड़ा होऊंगा, या कहीं पर भी ऑन द पेमेंट ग्रे मीन्स डल एंड ड्रैब पाथ्स, उबड़ खाबड़ रास्तों में भी होऊंगा, तब भी जो है मुझे ये आवाज़, ये जो लैपिंग साउंड है वाटर की, ये जो टकराने की आवाज़ होगी, ये मुझे वहाँ पर भी सुनाई देगी. एंड इट विल ब्रिंग पीस टू मी, इट विल सेटिस्फाई टू मी, इट विल सेटिस्फाई मी बिकॉज आई वॉन्ट टू लिसन दिस. आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. और इसको जो मैं कैसे सुनूंगा, ये मुझे जो है मेरे दिल की गहराइयों में सुनाई देगी. हर जगह मुझे जो है ये आवाज़ सुनाई देगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, जो कि मेरी हर नीड को, मेरी जो सॉलिट्यूड वाली नीड है, जो मेरी एक इच्छा है, उसको फुलफ़िल करेगी. सो थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज़ शेयर्ड हिज ओन फीलिंग्स अबाउट द रूरल एरियाज. ही वॉन्ट्स टू गो टू अ रूरल एरिया बिकॉज ही इज़ bored, totally bored by the city life and the congested area. But so he is imagining this. Innisfree is an amazing island which is imagined by the poet, and he tells about the acts which he will do in this Innisfree island. He wants to listen the buzzing sound of the bees. He want to build a cabin there. And next point is that he want to listen, he describes the 3 times of the day. What is morning is also very peaceful for him, joyful for him, because he hears the cricket song there. And when the sunrise happen, the morning removes its veil of mist. जब जो है सनराइज़ होता है, तब जो है मॉर्निंग क्या करती है, अपने मिस्टी जो दुपट्टे है उसको हटा देती है. और फिर उसके बाद जो है वो उसको मिडनाइट का सीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जब उसको शाइनिंग स्टार्स आसमान में दिखाई देते हैं. एंड अ नून पर्पल ग्लो, और जो शाइनिंग लाइट जो है आफ्टरनून में, वो जो है वो उसको बहुत अच्छी लगती है. और इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और इवनिंग टाइम भी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज ऑफ द सॉन्ग ऑफ लिनेट बर्ड. और फिर वो रेजोल्यूशन लेता है कि ही विल गो डेफिनेटली देयर. एंड थ्रू आउट द डे एंड नाइट ही विल हेयर द लैपिंग साउंड ऑफ द वाटर बाय द सी शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट ग्रे. मैं चाहे रास्ते में कहीं पर भी हूँ, रोडवे पे हूँ या किसी उबड़ खाबड़ रास्ते में हूँ, मुझे हर जगह जो है ये लैपिंग साउंड सुनाई देगी. आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. इसको मैं अपने दिल की गहराइयों से जो है सुनता हूँ. सो he tells about the nature's beauty in this poem and the congested life of city also. He has compared the life of city and rural area. So it's all about this poem. Guys, if you have any doubt about this poem and any other chapter, you can comment in the comment section. Thank you. And you have to maintain your notebooks properly. It will be checked. So thank you.